Hello, good morning students. Today we are learn chapter number 1 secretary and subunit of types of secretary. But when think about the types of secretary may be depend on the organization's company type, nature, size of capital, size of productions, and so different type of secretaries may be appointed in a different type of organizations, companies, cooperative societies. As per your syllabus, the growth of industrialization and the modernizations has led to an increase in a various type of organizations. Every organization therefore required one as such a person on whom the individual or organizations can entrust the person with the responsibilities. मीन्स ऐसा एक पर्सन चाहिए जो श्योर है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है? कंपनी सेक्रेटरी. नेक्स्ट, the concept of secretary has to expanded and is required by almost all types of organizations. Each secretary perform the duties and responsibility of the organization or employer. मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेक्रेटरी की ज़रूरत है और वो सेक्रेटरी जो भी ड्यूटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करता है. सो एक्चुअली मेन टू ऑफ सेक्रेटरीज, फर्स्ट पर्सनल सेक्रेटरी and second institutional secretary. Institutional secretary divided into 4 parts: secretary of the non-profit association, secretary of cooperative society, secretary of joint stock company, secretary of government department and other body corporate. It's an sub institutional secretaries. In these two main types of secretaries, personal secretary and institutional secretary. Personal secretary is an oldest type of secretary and institutional secretary is an as per the requirement, as per the nature of organizations, may be appointed a different type of secretaries. Next, personal secretary. The personal secretary or a personal assistant is the oldest type of secretary. मीन्स ये बहुत पुराना टाइप है और ये जो भी पर्सनल सेक्रेटरी जो अपॉइंट है वो अपॉइंट किया जाता है. नेक्स्ट, a personal secretary is one who is appointed by individuals like industrialist, businessman, professionals, conduct the correspondence and the day-to-day routines. मतलब जो भी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया है वो कौन अपॉइंट करता है? वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स पर्सनस है वो अपॉइंट करते हैं. और अपॉइंट करने के बाद सेक्रेटरी क्या करता है? कंडक्ट करस्पॉन्डेंस. जो भी उनके करस्पॉन्डेंस है वो कंडक्ट करना है और जो डे टू डे रूटीन है, जो ड्यूटीज है वो कंप्लीट करनी है. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सनल सेक्रेटरी. By individual appoint secretaries to look after other works so as to enable them to concentrate on their primary works. For example, doctors, lawyers, engineers, chartered accountants, actors, politicians, leaders, ministers may be appoint a personal secretary. Why appoint a personal secretary? Because they every time busy in his works and so they may be remaining works done through a personal assistant. Maybe अपॉइंटमेंट, कंडक्टिंग मीटिंग्स या डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स. मतलब ये जो बिजी इंडिविजुअल पर्सनस है वो सेक्रेटरी अपॉइंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो काम है उनके काम में से उनको टाइम नहीं मिलता और जो भी उनके रिमेनिंग्स मतलब जो भी काम से डॉक्यूमेंटेशन है, मीटिंग्स कंडक्ट करना है, किसी को अपॉइंटमेंट देना है या किसी के साथ डिस्कशन करना है या जो डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करना है, इसके लिए ये पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट, a personal secretary has such a no specific qualification. मतलब जो भी ग्रेजुएशन डिग्री, गुड कम्युनिकेशन, ओवरऑल लैंग्वेज इज अ रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल हैव नो बिकम अ नेसेसिटी. मीन्स पर्सनल सेक्रेटरी हैव नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मेंशन इन अ कंपनी एक्ट 2013, बट एटलीस्ट एज पर द प्रोफेशन मे बी ग्रेजुएट डिग्री, good command on overall the language is a required knowledge of computers, internet skill may be now compulsory required to a personal secretary, because individual persons, in this case doctors, lawyers, engineers, chartered accountants and actors, politicians, leaders, ministers may be work out on a higher level. They every time busy and so this remaining worse. When anyone secretary may be complete, the secretary require at least minimum
graduation, yeah, they have knowledge regarding the particular language, they may be knowledge related of the computers, internet is an necessary to in a current position. मतलब कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्सनल सेक्रेटरी के लिए नहीं है, लेकिन उसको एक ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, उसको जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो भी उसको नॉलेज है कंप्यूटर का और जो भी इंटरनेट का नॉलेज है वो करंट सिचुएशन में मतलब उसको चाहिए, क्योंकि जो काम कर रहा है, जो जिसके लिए पर्सनली अपॉइंट किया है, वो जो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, उनका जो वर्क है वो हायर लेवल का है और उसके लिए उसको ये जो नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट, द क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर और प्रोफेशन. मतलब जब प्रोफेशन चेंज हो जाएगा तो उसका नॉलेज भी चेंज हो जाएगा. इसलिए सेक्रेटरी जो भी अपॉइंट किया है, जो भी उसका जो भी ओनर है, उसका जो भी प्रोफेशन है, उससे प्रोफेशन से रिलेटेड उसको नॉलेज चाहिए. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. A secretary appointed by an institution or organization is called as an institutional secretary. Some institutional secretary are: first, secretary of the non-profit association, secretary of the cooperative society, secretary of joint stock company, and secretary of government departments. In this, all institutional secretary discuss in a step by step. Secretary of non-profit association. A non-profit association means the organization formed to promote social, educational, cultural, art, sport activities with the intention of providing services and not to earn a profit. Means non-profit association established for promoting social, educational, cultural activities, not established for earning a profit. मतलब non-profit association इसीलिए establish होती है कि जो भी social activities है, educational activities है, cultural activities है, उसको प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट मतलब एस्टेब्लिश की जाती है, प्रॉफिट मिलाने के लिए एस्टेब्लिश नहीं की जाती. अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरी. अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज एन लुक आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. द सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस, ऑन होनोरियम बेसिस. मीन्स non-profit association secretary is an elected by members and one of the management committee, and they work out related of the non-profit association is an full-time, part-time या सैलरी बेसिस या ऑनरियम बेसिस या रेम्यूनरेशन बेस. मतलब जो भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है उसमें जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, वो जो भी मेंबर्स है उसके लिए उसमें से इलेक्टेड मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट में से इलेक्टेड एक पर्सन है, वो सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी वर्क कर सकता है. और जो फुल टाइम है वो पार्ट टाइम ही है, जो भी रेम्यूनरेशन बेस पे वो काम कर सकता है. और उसमें कौन कौन मतलब जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कौन कौन है, रोटरी क्लब है, लॉयन क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, कल्चरल क्लब है या कॉमर्स ऑफ चैम्बर है, ये सारे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरीज. देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरीज. द सेक्रेटरी शुड बी at least knowledge regarding the particular non-profit association and functioning related of the organizations. Knowledge of the filing, computers, correspondence are the basic requirements for the types of organizations. मतलब जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस है उससे रिलेटेड नॉलेज जो भी सेक्रेटरी को होना चाहिए. नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. A cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more. In Maharashtra, state societies are registered under this Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. It is an main object to the provide services to its members. For example, cooperative society, bank, cooperative housing societies, and consumer cooperative societies. Means cooperative societies is an voluntary association formed by at least 10 members. In Maharashtra, maybe Cooperative Society Act 1960 under register all cooperative societies and cooperative banks, cooperative housing societies and consumer cooperative societies is an examples of the cooperative societies. मतलब cooperative society को establish करना है तो is an voluntary association है. इसमें जो भी establishment करने वाले members है वो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, वो खुद आके मतलब खुद कलेक्ट होके
एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसमें एटलीस्ट 10 मेंबर्स चाहिए, और जो भी हाईएस्ट लिमिट है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, एटलीस्ट 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिटेशंस ऑन द मेंबरशिप। बट इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1960 उसके अगेंस्ट रजिस्टर किए जाते हैं, और इसके जो एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटीज़ है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। The member elect their representative called management committee. One of the members, the management committee, is appointed as a secretary. Generally, such a secretary works on honorarium basis. For large-scale cooperative organization, secretary may be appointed as a full-time employee on the salary basis. Means, when appoint a secretary in cooperative societies, first of all, members elect a representative. This representative collectively board of director, and this elected management, maybe one up person maybe work as a secretary. Managing committee appointed as secretary. Generally secretary work as an honorarium base. Yeah, suppose anyone cooperative society on the large basis maybe appoint a secretary full time या paid a salary. अगर कोई सोसाइटी बहुत बड़ी है, उसका वर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या किया जाता है, फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करके उसको सैलरी दी जाती है, अदरवाइज जो भी रेम्यूनरेशन है उसके बेस पे सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज एन सच डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। मीन्स cooperative society secretary have no prescribed qualification, but they may be graduate, they have knowledge of the cooperative act, apply in a different place. मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसको कोऑपरेटिव एक्ट का नॉलेज चाहिए और एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज considered to be the most suitable on of the organization business activity on the legal large scale. A company secretary is considered to be one of the key officer of the company. Secretary is an of vital importance in a modern business organizations. In the joint stock company is an best suitable for the large scale business organizations, and so secretary is required. Secretary is an key person. Secretary hold important position, and so secretary play important role in the joint stock company. In new modern type of business organizations, maybe compulsory appoint a company secretary, but as per the size of capital, as per the nature, maybe appoint a full time, part time या remuneration based secretary. मतलब joint stock company ये जो लार्ज स्केल बेस पे जो भी प्रोडक्शन होगा या लार्ज स्केल जो भी बिजनेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके लिए मतलब ये सुटेबल है। और ये जो न्यू टाइप का जो भी लार्ज स्केल बिजनेस है या जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके लिए सेक्रेटरी इम्पॉर्टेंट है, और सेक्रेटरी फुल टाइम या पार्ट टाइम या रेमुनरेशन बेस पे अपॉइंट किया जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी। द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द time to company is a form to look after the various aspects of the business. मतलब सेक्रेटरी को जो अपॉइंट किया जाता है वो मतलब कौन से टाइम पे अपॉइंट किया जाता है, जैसे कंपनी की जो फॉर्मेशन है, मतलब कंपनी एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसी वक्त कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, और जो भी कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है, जो भी पॉइंट्स है, जो भी वर्क है, वो करने के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्रेटरी किसके अंडर में काम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में काम करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी इज एन इंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ की मैनेजर पर्सन। द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजर पर्सन has been introduced in the Company Act 2013. The board of director cannot look after the day-to-day affairs of the company, therefore the task is given to certain manager and executive of the company. KMP is and discussed in a chapter number 6. Means key manager persons, all of information included in chapter number 6, but
कंपनी एक्ट 2013 के अगेंस्ट जो भी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है वो सेक्रेटरी जो भी कंपनी की फॉर्मेशन है, मतलब कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट टू कंपनी रन ऑल ऑफ एक्टिविटी डन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में जो भी वर्क्स है उसके बाद कंपनी रन होने के बाद जो भी लीगल कंप्लायंस है, जो भी कंपनी की मीटिंग्स कॉल करनी है, जो भी पॉलिसीज़ फॉर्म करना है, इसके बारे में सेक्रेटरी क्या करता है, मतलब इसके लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। और सेक्रेटरी क्या है, की मैनेजर पर्सन है, और ये चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एज पर द सेक्शन 203 कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया, मतलब उसको ICSI की मेंबरशिप एक्वायर करनी है, उसके बाद ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी एज एन पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी में बी अपॉइंट अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन को जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी के पोस्ट पे अपॉइंट करना है तो उसको ICSI की मेंबरशिप उसको मिलनी चाहिए, उसको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके सिवा उसको ये पोस्ट पे अपॉइंट नहीं कर सकते एज पर कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें जो उसके हेड कौन है, मिनिस्टर, और उसके अंडर में काम करने वाले ये सारे सेक्रेटरीज। अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरी इज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड of ministry or department in the union of state governments. Secretaries hold the position and their departments like finance secretary, defense, home secretaries, means in a government department different type of governments, minister is a head of this department and different type of departments may be working going on, मतलब जो भी मिनिस्टर्स है वो डिपार्टमेंट के हेड है और उसके अंडर में काम करने वाला सेक्रेटरी है, और उसमें कौन कौन से टाइप के डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, होम सेक्रेटरीज है, मतलब ये सारे सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट department needs to possess graduation degree. The secretary should pass the civil service exam conducted by the public service communication and Indian administrative service, मतलब what is the qualification of the government department secretary? The secretary should be pass the civil service exam conducted by the public service communication and Indian administrative service, मतलब ये सारे qualifications सेक्रेटरी के पास चाहिए, उसके बाद ही सेक्रेटरी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज़ उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है तो उसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास होना है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, मतलब IAS एग्ज़ाम भी पास होना है, उसके बाद ही वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। Thank you. Remaining part discuss in a next video.